Okay, let me share my screen with you. Here we are. सर इतना समय हो गया तो थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे अटके थे लास्ट सेशन में. So sir, we were there into the part called annuity in the time value of money. When the series of transactions are taking place with the same amount of money for a number of periods, and we want to know the future value and the present value of all the cash inflows putting together, that's called an annuity. But there needs to be two conditions satisfied. सर कौन सी कंडीशन? सर पहले वाली तो कंडीशन ये है कि अगर तुम 10,000 रुपए 10,000 रुपए 10,000 रुपए जमा करते हो तो उसमें अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए. 10 का 11 कर दिया, 11 से 12 कर दिया तो एन्युटी हो गया. डिसकंटिन्यू, दैट डज नॉट मीन दैट द फ्यूचर वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड फॉर दैट, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन एन्युटी. Then number two, that the period between the two successive transactions should be same. मतलब कि या तो फिर वो मंथली होना चाहिए, या तो फिर क्वार्टरली होना चाहिए, या तो फिर वो डेली होना चाहिए. लेकिन कभी कभी डेली और कभी कभी उठ के क्वार्टरली, तो ऐसा नहीं चलता भैया. लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस. I'm just copying those questions somewhere. You may take a snap of all the questions first. These are the various questions we are going to solve in an annuity today. Please take a snap of it. Okay, you people are aware that I will put the classwork questions as well as some practice questions as a material in your Google Classroom once the first module will be over. So after the end of every module, I generally distribute classwork as well as homework questions. Okay, let's solve the first one now. I'm just copying it and pasting it down other cells. Give me 30 seconds, please. Okay, let's move ahead. Now, as far as the annuity is concerned, there are two types of an annuity, and accordingly, the formulas are also getting different. First one is the ordinary annuity, and second one is the annuity due. Sir, what is the difference between the two? Let's take the example. You are investing 10,000, 10,000, 10,000 for 5 years. At the end of each year, so first year has over here, second year, third year, fourth year, and fifth has over here. So say if you are investing the 10,000 at the end of the first year, at the end of the second year, at the end of the third year, at the end of the fourth year, and at the end of fifth year, and you want to know the future value at this point, which is at the end of fifth year. So this is called as the ordinary annuity, because at the end of each period, you are depositing the cash. You might have received the cash as well. That differs based on the example, obviously. So whether it's inflow or outflow, but this series of transactions is taking place at the end of each period. That's why it's ordinary. Now here in this, if I give you a very simple understanding of this, पहले वाले जो तुम्हारे 10,000 रुपए है पहले वाले, उसके ऊपर सर मुझे सिर्फ 4 साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा, 4 years interest. Why? Because I'm investing at the end of the first year. So I should get the interest only for the second, third, fourth, and fifth year. Similarly, for the second 10,000 you are investing, you will get the interest for 3 years. For third 10,000, you will get the interest for 2 years. For fourth 10,000, you get the interest for 1 year because it's at the end of the fourth year. तो आपको सिर्फ 5वें साल का इंटरेस्ट मिलेगा. और सर 5वें साल का जो 10,000 रुपए है ना, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? बीकेटी, बाबा जी का. अरे वाह, बच्चों को मालूम हो गया. नाइस टू सी दैट. अब जाते हैं एन्युटी ड्यू में. एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि आप शुरू में इन्वेस्ट करते हो, तो शुरू में कर देते हो बेटा, तो पहले वाला जो है ना उसके ऊपर आपको 5 साल का मिलेगा. बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब कि आपको फर्स्ट का भी मिलेगा, सेकंड का भी मिलेगा, थर्ड का भी मिलेगा, फोर्थ का भी मिलेगा और 5वें का भी मिलेगा. वैसे ही दूसरा वाला जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो उसके लिए 4,
तीसरे वाले के लिए 3, चौथे वाले के लिए 2 और पांचवे वाले के लिए भी 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके कारण दोनों की फॉर्मूला अलग होती है। तो सर क्या है फॉर्मूला, वो हमने देख ली थी और उसका फॉर्मूला चार्ट भी आपको दे दिया है। तो हम अब यहां पे क्वेश्चन में आएंगे डायरेक्टली। At the beginning of each month, rupees 5,000 is deposited in an account opened. सर ओपन का स्पेलिंग तो देखो कैसे लिखा है, तो बेटा इग्नोर करो, इग्नोर। मैंने बताया था ना, वो पानीपुरी खाने वाले के हाथ को इग्नोर करना है, अदरवाइज वो पानीपुरी का मजा बिगड़ जाएगा। ओपनड इन अ पोस्ट ऑफिस बाय मिस ममता ऑफ बंगाल फॉर हर रिटायरमेंट प्लानिंग। ममता विल बी लाइक, मैं रिटायरमेंट लेने वाली नहीं हूं, मैं तो दूसरों को रिटायरमेंट दिलाती हूं। एनीवे जो भी हो, that pays interest of 12% compounded monthly. Find the balance in the account at the end of 6 years and also calculate the total interest earned from the investments. Now whether it's a ordinary annuity or annuity due, can someone tell me? Sir, ordinary annuity. Ordinary annuity. Ordinary के due? Sir, due. Sir, नीचे तो दिया है कि at the end of. Find the balance at the end of 6 year. वो ordinary तुम डिपॉजिट कब करती हो? Beginning of each month. Sir, it is written beginning of each month. So annuity due. तो annuity due. हाँ, 6 साल के बाद में अपने को फाइंड करना है बैलेंस, वो एन्युटी ड्यू हो या तो फिर एन्युटी ऑर्डिनरी हो, लेकिन बैलेंस तो 6 साल के बाद ही फाइंड करना है। तो डोंट फोकस ओवर देयर इन दैट, हम कब डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर फोकस करो। तो सर बिगिनिंग तो अपन आ गया एन्युटी ड्यू, सर फॉर्मूला क्या है उसका? तो दैट्स द ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला प्लस सम मॉडिफिकेशंस। सो एफवी इक्वल्स टू आई स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, 1 plus r raised to n minus 1 divided by r. This is the ordinary annuity formula. In this, a slight modification. In n we will have n plus 1 and here we will have minus 1. जो कौन है? हमारे चाचा जी, मैरिज फंक्शंस में आए हुए चाचा जी। तो उनको साइड में बैठा दिया, भैया आपको यहाँ पे मैरिज में कोई तकलीफ नहीं करनी है, आपको दुख नहीं लगाना है, हमारा फंक्शन आपको बिगाड़ना नहीं है, आप वहां पे जाके साइड में बैठ जाइए। तो -1 उधर चला गया, जो ये गैदरिंग के बाहर है। तो इक्वल्स टू आई अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपीज। सो इन ब्रैकेट 1 plus r. The first rule, r should be divided by the number of periods in a year and n should be multiplied with the number of periods in a year if the compounding frequency is different from yearly. In this case, the amount is being deposited on a monthly basis. That means the compounding is also on a monthly basis. Very nice. So 12% को डिवाइड करना है 12 से और n को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो सर 0.12 divided by 12 raised to n will be number of years, 6 years. तो 6 multiplied by 12 और वहां पे +1 है भैया, भूल मत जाना उधर, -1 to be divided by r. r will again be 0.01 which is basically 0.12 divided by 12. Sir, not getting. See, r and n are yearly in nature. तो बेटा आपको n है ना, उसको नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर से मल्टीप्लाई करना है, r को नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर से डिवाइड करना है। तो r है वो 12% है ऑन अ ईयरली बेसिस, 12% per annum. Now if nothing is stated, no, we assume that the rate is per annum only, but the compounding is taking place on a monthly basis. तो आपको 12 का डिवाइड करना है 12 से और ईयर्स को मल्टीप्लाई करने हैं 12 से, so it will be basically the number of periods. सर मींस अगर तो ये फॉर्मूला में क्यों n+1 है और यहाँ पर तो हमने 6 into 12 किया है। समझा नहीं बेटा, r को डिवाइड करना है, n को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अरे सर वो नहीं, ये तो? जो फॉर्मूला जो है ना ऊपर की जहाँ पर n+1 है रेज़ टू n+1, हाँ वहाँ पर हमने नीचे 6 into 12 किया है, तो वहाँ पर 6+1 नहीं होगा।
एक मिनट, एक एक बोलो, दो 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 तीन तीन जन बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। सर हाँ बताइए। ये पूछ रही है वो 6 into 12 क्यों किया, लेकिन 6 years and 12 months के लिए किया है ना, मंथली हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो पूछ रही है। हाँ बेटा, एन है ना, उसको हम नंबर ऑफ इयर्स कहते हैं। Sir, no, I am not asking that. I am asking that in formula here, raised to n plus 1 is given, and in the answer we have done the n is 6 and plus 1 की जगह पर into 12 क्यों किया है? अरे एन है ना, वो नंबर ऑफ पीरियड्स है बेटा। अब नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब ये होता है कि तुम कितने नंबर ऑफ पीरियड्स तक तुम्हें कंपाउंडिंग मिलेगा। तो एन को तुम और कोई चीजों से मत देखो। एन मतलब कि नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स ईयरली के हिसाब से अलग होंगे, मंथली के हिसाब से अलग होंगे। तो अगर ईयर है तो मैं वहां पे स्ट्रेट अवे 6 लिख देता, लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में मैं जो 5,000 रुपए जमा करता हूँ ना, वो एंड पे करता हूँ, मंथ के एंड पे। तो मेरे पास नंबर ऑफ मंथ्स में पीरियड चाहिए, तो मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना। वहां पे मैं डायरेक्टली अगर 72 करता तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम था? कुछ नहीं, मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। चलो मैं एन को नंबर ऑफ पीरियड्स ही बताता हूँ, 72। एन इज नॉट नंबर ऑफ ईयर, इट इज नंबर ऑफ पीरियड्स। इज इट क्लियर नाउ? तो सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ये जो 6 है नंबर ऑफ इयर्स, राइट? यहाँ पर हाँ, फॉर्मूला में नंबर ऑफ ईयर 6 है और इसके बाद प्लस 1 है, तो हम डायरेक्ट 7 into 12 भी कर सकते हैं ना? 7 into 12 क्यों? नहीं 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 नहीं, एन एन है वो नंबर ऑफ पीरियड्स है। एन है वो नंबर ऑफ पीरियड्स है, प्लस 1 करना है। तो 6 + 1 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 नहीं करना है। हाँ। एन है वो नंबर ऑफ पीरियड्स है। इज इट क्लियर? एन है वो नंबर ऑफ पीरियड्स है। यस। सर सपोज उधर 12% की जगह 10% होता, then हाँ, there would be 1 plus 0.10 divided by 10, right? वेरी ट्रू। ओके सर, मींस परसेंटेज को पहले डिवाइड करना है ऊपर और नीचे उसको डिवाइड में लेना है। हाँ, आर को डिवाइड ओके करना है। आर को डिवाइड करना है नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर से, और आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स होता है ऊपर, टू फाइंड द एन यू विल मल्टीप्लाई दैट एन विद द नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर। और प्लस 1 है वो एन के बाद में है। पहले एन तो फाइंड करो, प्लीज, फिर प्लस 1 करना है। तो एन ही है वो है 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, बिकॉज एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पीरियड्स, नॉट नंबर ऑफ ईयर। इज इट क्लियर? और सर ये नीचे जो डिवाइड में आर है वहां पर हम 0.12 नहीं ले सकते? नहीं, आर को मैंने बोला ना डिवाइड बाई 12 करना है। ऊपर वाला आर नहीं, सिर्फ नीचे वाला भी आर। हर सर ये जगह पे आया जहाँ, था हमको सेकंड सेम में, नो फर्स्ट सेम में आया था मैथ्स में। हाँ अगर मंथली हो तो 12 लेने का, बाद में ये डेज में हो ना तो 365 लेने का। हाँ, ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि आपको 0.01 हाउ 0.01 is 0.12 divided by 12. 0.12 is the rate. Rate I am writing in a decimal. Is it clear now? And यहाँ पे फिर से -1. Okay. So equals to 5,000. That's fine. I mean, you are absolutely allowed to ask the questions, irrespective of whether they are silly or not. You know, ये आपको सोचना ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन से ही तो क्लैरिटी बढ़ती है। So 1 plus 0.01 raised to 72 plus 1, so it will be 73, minus 1 to be divided by 0.01, and here we have got the चाचा जी जिनको भूल नहीं जाना है, equals to 5,000. And now let me simplify this further. 0.01 raised to 73 minus 1 to be divided by 0.01, and here we have got -1 as well, so equals to 5,000. So 1.01 raised to 73, that can be found by using the logarithms. We know how to take it.
That can be found by using the scientific calculator too. लेकिन scientific calculator I prefer कि आप यूज ना करो, आप वैसे ही नॉर्मल कैलकुलेटर से वे कर ही सकते हो, तो फिर क्यों यूज करना। कल जाके कहीं पे अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने के लिए मना कर दिया तो हमें आना चाहिए सिंपल वाले कैलकुलेटर में भी। सर इसके कटके कटके कर सकते हैं अपन, कटके 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 हो 73 के यू कैन हैव 7 10 के 7 कटके, so you may write it like 1.01 raised to 10, 1.01 raised to 10, 1.01 raised to 10, 1.01 raised to 10. Well, 1 minute, let me complete. 1.01 raised to 10, 1.01 raised to 10, 1.01 raised to 10. So we have got 7 times, और 3 टाइम करना बाकी है, तो it would be 1.01 raised to 3. Now 1.01 raised to 10 you will have to find only for one time, and then whatever the answer you have got, just put it over here and then solve it manually, you know, that would have been the easier way. लेकिन थोड़ा सा लेंदी वे है. Yes, someone was asking me something. Sir, can't we break it in the like 1.01 raised to 20? 3 Why times not? 20 and 13 power. Definitely, why not? 20 के 3 कट के करो, और चौथा वाला है ना वो 13 का कटा। सर 15 के कैलकुलेटर 15 के 4। हाँ सर, कैन नॉट बी यूज कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर ना, बताया तो सही बेटा, मैंने हाँ बताया सर, कि वही कर ही सकते हो, लेकिन कल जाके अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर डिसअलाउ हो जाए एग्जाम में, तो आप मैन्युअली भी करने चाहिए, आपको आना चाहिए। सर यस प्लीज। लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपने किया हो तो शेयर कीजिएगा ना गूगल क्लासरूम में। हाँ, by end of the Tuesday every sessions which are pending to be uploaded will be done. ओके सर। एंड सर ये आप फाइल में जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वो भी आप सेंड कर दो ना At the end of the module. ओके सर। Okay, so here we have got 1.01 raised to 73. Let me do it over here. I have told you how to do it. अगर रेस टू 10 है ना, मतलब ये हो गया कि अगर तुम कैलकुलेटर में करते हो तो 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.01, राइट। सो यू विल प्रेस इक्वल टू, और ऐसे इक्वल टू और आपको 8 बार प्रेस करना है, क्योंकि एक बार जब प्रेस कर दो तो ऑलरेडी 2 बार तो आ गया है मल्टीप्लीकेशन, तो और 8 बार करना बाकी है। तो इन टोटल यू विल प्रेस द इक्वल टू फॉर 9 टाइम्स इफ यू आर यूजिंग द सिंपल कैलकुलेटर। लेकिन सर मेरे पास तो इधर एक्सेल है, तो मैं इधर सीधा ऐसे ही कर दूंगा। ओके 73, so we have got 2.06757, then -1 to be divided by 0.01। चाचा जी को भूल नहीं जाना है, -1 पीछे भी है, so equals to 5000। then sir, as per the Bhagu Sabba, first there will be a minus, and then 0.01 will be divided. So 1.06757, पहले -1 को एडजस्ट कर लिया, and then in the denominator we have got 0.01, again we have got -1 over there, so equals to 5000। Again, as per the Bhagu Sabha Bodmas theorem, first there should be division and then -1 will be given the effect. So equals to 1.06757 divided by 0.01. Sir, we have got 106.757। -1 का इफेक्ट अब देना है, because it's there after the gathering। गैदरिंग के बाहर है भैया, चाचा जी को कहाँ पे बैठा के रखा है, जहां पे मैरिज हो रहा है ना उससे बाहर, तुम इधर इस ब्रैकेट में नहीं रहो, यहाँ पे तुम प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो वी विल हैव 5000 मल्टीप्लाइड बाय 105.757। so now we'll have the ultimate answer
which is going to be 5000 multiplied by 105.757. Sir, that's gonna be 528,785 rupees. तो ममता जी को बोलो कि ममता जी, अगर आप 5,000 रुपए डिपॉजिट करती है तो आपके पास 6 साल के बाद 5,28,785 रुपए होंगे। चलो, क्लियर है भैया यहां तक? मे आई हैव अ कंफर्मेशन दैट एवरीवन इज देयर विथ मी टिल नाउ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू। तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज कर रहे थे, वो कंफ्यूज हो रहे थे, उनको मैं बता दूं। यहाँ पे है ना बेटा, आपका क्वेश्चन बहुत सही था निशी का। n को है ना नंबर ऑफ पीरियड्स लेने हैं, तुम n+1 करके फिर मल्टीप्लाई बाई 12 करोगी तो फिर आंसर बहुत ज्यादा अलग आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए मुझे निशी को कुछ यहाँ पे राउंड ऑफ अप्लॉज देना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों ने बताया था कि यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो इमोजी करके कुछ ऑप्शन आता है। तो इमोजी में राउंड ऑफ अप्लॉज कहीं पे मिल रहा है? नहीं है। ये देखो इमोजीज भी कैसे सड़े हुए दिए हुए शुरू में। किधर तो होगा, चलो देखते हैं किधर है। Sir, scroll down. अच्छा, स्क्रॉल डाउन करना है पहले वाले में। चलो करते हैं स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। किधर है? सर्च बटन नहीं मिल रहा है यार। ये देखो कुछ है तो यू कैन सर्च। अच्छा, सर्च भी कर सकते हैं। अरे हारे इधर सर्च। ये देखो, ये तो मतलब मेरे को नई चीज मालूम पड़ गई। थैंक यू सो मच फॉर दिस टू नाउ। अरे भैया थैंक यू। ये देखो सर्च भी कर सकते हैं। तो ये मेरे आ गए 4-5 हैंड डाल दिए और इनको मैंने सेंड कर दी है। चलो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलो फिर से कॉपी करके जाते हैं इसको नीचे लेके। नीचे सावन की गड़ा, चल बत्ती बजा, चल अपना चला, चल नीचे चल जल्दी। नीचे आ गए अपन। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। टू सेव फॉर, ये किसी किसी बच्चों के अनम्यूट हो रहे हैं बीच बीच में। टू सेव फॉर द न्यूली बोर्न चाइल्ड्स एजुकेशन, विरुष्का decides to invest 1.8 lakhs at the beginning of each 3-month period, paying the interest of 8% compounded quarterly. Find the amount of investment after 15 years. पहले तो है ना फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला में भी यहाँ पे क्या बताया? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच 3 मंथ, मतलब कौन सी वाली एन्युटी हो गई? कौन बताएगा? कौन बताएगा? Due. ड्यू, माउंटेन ड्यू। आज कुछ तूफानी करते हैं। सम पीपल विल लाइक सर वो तो थम्स अप का है। सॉरी। सो FV इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट 1 + R⁻n + 1, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय R, और चाचा जी को भूल नहीं जाना है। नाउ I will be the amount of installment which is going to be 1,80,000 इन ब्रैकेट 1 + R। R को डिवाइड करना है किससे? कौन बताएगा? चलो अब बताओ। ये Sir, Four. 8 सर divided डिवाइड by बाय 4 क्वार्टर है। हाँ, डिवाइड बाय 4, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 क्वार्टर 4 आते हैं। हाँ, वो वाले क्वार्टर नहीं, ये वाला। एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं। तो आपको रेट को डिवाइड करना है 4 से, और n फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इयर्स को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो सर 0.08 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू, कितने साल के बाद विरुष्का को पैसे चाहिए? 15 साल के बाद। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, 60. उसके बाद में 1 आएगा। यहाँ पे और एक -1 है, टू बी डिवाइडेड बाय 0.02। 0.02 क्यों? क्योंकि 0.08 डिवाइडेड बाय 4 यार, -1 और एक है, उसको भी भूलना नहीं है। Sir, 0.8. Where we get from 0.8? इधर रहा 8%, पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ 8%, सेकेंड लाइन में बेटा।
Got it. और सर ये 0.08 है, उसको डिवाइडेड बाय 4 किया इसलिए 0.02 आया। हाँ, वेरी नाइस। चलो अब हाँ मजा आया यार, मैं बच्चे एकदम मस्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मजा आ रहा है। सो 1,80,000, so in bracket, so it will be 1.02 raised to 15 chalk 60. 60 plus 1. हाँ 61. So we have got -1 there too. In denominator 0.02 और चाचा को भूलना नहीं है। So equals to 1,80,000 in bracket 1.02 raised to 61. तो चलो इसके कटके करने शुरू करते थे भैया, कटके। तो 1.02 15 के 4 कटके कर देते, एक काम करते हैं 1.0, एक ही मिनट बेटा, 1.02 रेज टू 15, 1.02 रेज टू 15 और एक आ गया 1.02 अकेला बैठा हुआ। तो 15 को एक बार फाइंड करो, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिप्लेस करो, उसको मल्टीप्लाई करो और 1.02 को भी भूलना नहीं है, तो वो 61 टाइम्स हो जाएगा। चलो क्या आता है? 3467 3.3467 3467. Very nice. -1 divided by 0.02. Here we have got -1 as well. So equals to 1,80,000 in bracket. 67. 2.3467. Very good. To be divided by 0.02 -1. As per the Bhagu Sabba, first there will be a division and then there will be -1. So 1,80,000. 117.3233 33 लिख दे। चलो 117.335. ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 335 लेते हैं। So -1. So equals to 1,80,000. अब आएगा मल्टीप्लीकेशन में 116.335 and if you multiply that with सर 1,80,000, 332 है, 5 नहीं है। 3325. अच्छा 3325 है, चलो बीच में ऐड कर देते हैं 2 को, 3325। चलो बताइए क्या आंसर आता है। यहाँ पे मुझे मालूम है लोग किस में गोटे करेंगे, मालूम है? 9,39,862. हाँ करोड़ में और लैक्स बोलने में गोटे करेंगे, गोटे। 2 crore 9 lakh 2 crore 93 lakh 9,862.63. ठीक है, एक बार एक जन। आई रियली अप्रिशिएट द एंथुसियाज्म ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन धीरे धीरे 116.3325। तो सर ये तो आपके सेल में भी नहीं आ रहा है, तो वो इसीलिए विराट कोहली है ना भैया, विरुष्का की है। छगनलाल मगनलाल के पैसे तो है नहीं कि एक सेल में आ जाते। 2,09,39,850 rupees. Very nice. So answer given by both of these students are correct. So that will be a money in their fund after 15 years. तो उससे वो अपनी बच्ची का एजुकेशन करवाएंगे। तो 15 साल के लिए एजुकेशन नहीं करवाना है क्या? एनीवे उनका मैटर है, चलो जाने देते हैं। जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। चलो तीसरा क्वेश्चन अपन कॉपी करते हैं, उधर जाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे सोचते हैं उसके बारे में कि क्या किया जाए इसके साथ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोलो ये क्वेश्चन के क्या साथ क्या सलूक किया जाए, करना तो पड़ेगा ही। Guide Mr. Burfi to find the number of years in which the annuity of 1,500 rupees payable at the end of each year accumulates to 30,000. Rate will be 9%. चलो समझने की कोशिश करो। ये बर्फी भाई साहब आपको क्या पूछ रहे हैं कि अगर वो 1,500 रुपए साल के एंड में जमा करते हैं तो कितने नंबर ऑफ इयर्स में वो पैसे है वो 30,000 रुपए तक पहुंच जाएंगे। वो साल में एंड में 1,500 रुपए जमा करवाते हैं तो कितने साल में उनके पास 30,000 रुपए हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिक्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। You have got a constraint, you can invest only 1,500 rupees. You have got the constraint that you want 30,000 rupees after some number of years. So you will have to do the goal based planning. कि अगर मैं 9% एक्सपेक्ट करता हूं मेरे इन्वेस्टमेंट में से तो कितने साल लगेंगे
जिसमें मेरा पैसा 30,000 तक पहुंच जाएगा। तो एक बात तो फिक्स है कि एन्यूटी है, तो देखते हैं कि कौन सा वाला वेरिएबल है वो एन्यूटी में मिसिंग है। एन्यूटी कौन सी है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी एन्यूटी का फॉर्मूला तो और इजी है। सो एफ वी इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन minus 1 divided by r. So equals to I is the amount of installment, going to be 1500 in bracket 1 plus r. R will be 9% and the investment is also on a yearly basis. तो अगर yearly basis है तो फिर R के साथ कोई भी छेड़छानी करने की जरूरत नहीं है। N के साथ भी कोई भी छेड़छानी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द कंपाउंडिंग इज एनीवे yearly इन नेचर। तो या यहाँ पे R होगा वो 0.09 होगा, तो N भी हमें जो मिलेगा वो भी नंबर ऑफ ईयर्स में ही मिलेगा। So I am writing N as N over there minus 1 divided by R. You may assume N as X, लेकिन कोई कोई लोगों को X से प्रॉब्लम होगा so you may just keep it as N over there. So equals to and sir FV that is also given, no? We want 30,000 rupees to be accumulated. So on the left hand side also we have got the value of 30,000. So therefore 30,000 equals to 1500 1.09 raised to n minus 1 divided by r भी हो जाएगा 0.09। चलो अब आगे बढ़ते हैं। n है वो मिसिंग है, कैसे उसको निकालेंगे, किधर से निकालेंगे, कहाँ छुप के बैठा हुआ है, सांप के बिल में छुप के बैठा हुआ है, निकालेंगे उसको उधर से। देयरफॉर 30,000। अब एक काम करते बेटा, थोड़ा सा ये 1500 है, दोनों साइड को अगर तुम 1500 से डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास क्या आंसर हो जाएगा? 1500 है वो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1500। वैसे ही दोनों साइड को तुम 0.09 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा जो यहाँ पे 0.09 है ना वो इधर आ जाएगा 0.09। सो द इक्वेशन विल बिकम इक्वल्स टू 1.09 रेज टू n माइनस 1। जिनको नहीं समझा, नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो वो आ गया न्यूमरेटर में। बाजू में जो मल्टीप्लिकेशन में है राइट हैंड साइड पे 1500 उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया तो वो आ गया डिनोमिनेटर में। चलो भैया सोल्व करते हैं। तो देयरफॉर इक्वल्स टू, आई नीड टू प्लग इन द चार्जर, just give me 30 seconds guys. I need to plug in the charger whether my voice is audible or not. Students, am I visible or not? ये सब डायलॉग अब कॉमन हो गए हैं कोरोना के समय पे। ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर मी। सो इसको करते हैं तो क्या आता है? ये आता है वायरस प्रोटेक्शन। चलो जाने देते हैं उसको, मैच कर लेता हूँ। मैच 20 आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 1500 20। अच्छा, उसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट और मल्टीप्लाई 1.8 1.2 1.8 नो 2 यस सर 1.8 ओके इक्वल्स टू 1.09 रेज टू n माइनस 1। तो ये माइनस 1 है, उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो देयरफॉर 1.8 प्लस 1 इक्वल्स टू 1.09 रेज टू n। सो इट विल बी 2.8। यहाँ पे देयरफॉर की साइन इक्वल्स टू 1.09 रेज टू n। सर ये तो फंसे, बुरी तरह फंसे। अब n को क्या करे क्या करे क्या करे? तो मम्मी याद आ गई। लेफ्ट साइड मूव करेंगे सर, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो क्या होगा? चलो बताओ। ये 2.8 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ए छोकरी, गंडी छोकरी, वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, पावर में। स्क्वायर रूट। हाँ तो स्क्वायर पर, लेकिन स्क्वायर रूट में करोगे तो 1.09 और n को तुम स्क्वायर रूट में करोगे तो फिर वो कौन से स्क्वायर रूट से तुम्हें n को डिवाइड करना पड़ेगा? मतलब दैट विल आल्सो बिकम लिटिल डिफिकल्ट नो। तो एक काम करते हैं, मम्मी याद आ गई ना तो मम्मी के पास ही जाते हैं।
मैथमेटिक्स की मम्मी कौन है? लॉगरिथम. टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. टेकिंग log on both sides. So log of 2.8 equals to whatever is there in a power will come into a multiplication if we take the log of this. That is the very fundamental first rule of taking the logarithm. Some people will be like, sir, hole itna kya over excited ho rahe ho? So n multiplied by log of 1.09. इसे कहते हैं attention grabbing technique. वॉइस मॉड्यूलेशन. अच्छा, ये जो लॉग है वो मल्टीप्लिकेशन में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेशन में. तो करते हैं लॉग ऑफ 2.8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.09 इक्वल टू n. अब मालूम है कोई कोई शाणे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो इधर लॉग को उड़ा देंगे. अरे भाई ऐसा नहीं करना है, लॉग कोई नंबर नहीं है, लॉग की पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तब जाके. अब लॉग को उड़ा के बोलेंगे 2.8 डिवाइडेड बाय 1.09 नंबर ऑफ 9. नहीं नहीं नहीं. लॉग को ऐसे उड़ा नहीं सकते, लॉग फाइंड करना पड़ेगा. तो चला जाते हैं लॉग टेबल में. अपने पास तो लॉग टेबल है ही, और लॉग लेना भी आ गया एकदम मस्त अपने को. तो जाते हैं लॉग टेबल में. बिल्डू लॉग जाते 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 हैं, इधर आ गया अपना लॉग टेबल. लॉग टेबल फिर से ओपन करते हैं क्योंकि ये वाले लॉग टेबल में ऑलरेडी कुछ नोटेशंस है. तब तक तुम लोग भी अपना लॉग टेबल फाइंड कर लो भैया. चलो आ गया. अच्छा सर, आपने बताया था कि फर्स्ट 2 डिजिट. हाँ यस प्लीज सर. कैन यू सर दिस लॉग टेबल इन क्लासरूम? बेटा हो गया है शेयर, बहुत Okay. पहले हो गया. कोई कोई बच्चे मेरे ऊपर वैसे वाले इल्जाम लगा ले जो मैंने कभी पाप किए ही नहीं है. बोलो, वो इल्जाम मेरे ऊपर लगा. ध्यान नहीं था. सॉरी सर. हाँ, अब किसी ने इल्जाम लगा ही दिया है तो फिर वो पाप भी कर दो. सो log 28 सर 2 डिजिट होते हैं ना पहले, उसका log लेना है irrespective of wherever the decimal is. तो 28 के जाके टेबल में देखना है. अब 28 के बाद क्या है तो हम देखेंगे कि वो 2.8. अरे बेटा समझा, पॉइंट कहाँ पे भी है उसको इग्नोर करके अपने को पहले 2 डिजिट का log लेना है. यही तो अपन लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे. उसके बाद में तीसरा वाला डिजिट है ना, उसके कॉलम में देखना है और फोर्थ वाले डिजिट का मीन डिफरेंस लेना है. तो 28 के टेबल में गए अपन. 28 में 28 डेसिमल का कुछ करेंगे बाद में, उसका इंतजाम कर देंगे, डोंट वरी, उसको थोड़ी ना बख्शने वाले हैं अपन. और 28 में किसमें? 0 में, क्योंकि 8 के बाद अपन अज्यूम करेंगे कि 0 होगा. तो 0 का टेबल विल बी हियर. 28 में 0 विल बी 4472, ये वाला. ठीक है. और मीन डिफरेंस भी 0 का, तो 0 का मीन डिफरेंस होता ही नहीं है भैया. मीन डिफरेंस शुरू होता है 1 डिजिट से. तो ये वाला जो 2 है ना वो 1 डिजिट का है. तो 0 का तो मीन डिफरेंस भी कोई नहीं है, तो वो 0 ही आएगा. तो अपना वैल्यू ही हो जाएगा 4472. तो अगर लिख दिया मैंने 4472. चलो अब कोई है हमारे क्लास का बाजीराव सिंघम या तो फिर मणिकर्णिका, तो बताओ यहाँ पे डेसिमल किधर आएगा? बताओ बताओ. 0.4472. Sir, 0.4472. वेरी नाइस सर. कैसे आया सर? पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 1 डिजिट. मैं बात कर रहा हूँ डिजिट की, नंबर की नहीं. उसमें से -1 करना है. अरे वाह, ये तो भैया बल्लो लोगों को मस्त आ गया. तो 1 डिजिट में से 1 माइनस करोगे तो अपना आंसर शुरू होना चाहिए 0.4472. अगर सर यहाँ पे 28 होता तो क्या होता? 28.0 होता तो अपना वैल्यू का वैसा ही रहेगा 4472. लेकिन पॉइंट से पहले यहाँ पे कितने डिजिट है? 2. 1.4472 होगा. अरे भाई यार मजा आ गया. भाई वाह वाह बेटे वाह, मौज कर दी. सो टू बी डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.09. अब log ऑफ 1.09 में क्या है? चलो उसका भी जाके देखते हैं. तो पहले 2 डिजिट का लेना है. 10 में 9 के टेबल, और जो फोर्थ डिजिट है उसको 0 लेंगे. ठीक है. उसका मेन डिफरेंस ऐड करना है. तो 10 में जाके 9 की वैल्यू देखते हैं. तो 10 के टेबल में गया 10 10 10 का दम 10 का दम 10 का डजन. इधर रहा 10 आ गया. ठीक है. अब ये 10 में
जाना है 9 की वैल्यू, तो 9 है इधर, तो आ गया 0374। और मिन डिफरेंस तो आएगा नहीं, उसके बाद वाला फोर्थ डिजिट अपन अज्यूम करेंगे कि 0 है, तो मिन डिफरेंस 0 का कुछ है नहीं, तो अपना वैल्यू सीधा सीधा कौन सा बन जाएगा, 0374। तो उस वैल्यू को वैसा का वैसा ही लिखेंगे 0374, कोई भी छेड़छानी नहीं करनी है उसके साथ, 0374। अब बताओ कहां पे डेसिमल आएगा, चलो बताओ। 0.0374। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो आपके पास नंबर है उसमें कोई छेड़छानी नहीं करनी है, उससे पहले कौन सा वाला नंबर लेना है उसके लिए ही लॉग है। तो पॉइंट से पहले एक डिजिट, एक में से एक लेस, तो 0.0374 आ गया। तो सर इक्वल आंसर 1.1957। 1.19 नहीं आएगा, फिर से कर। 11.9495। हाँ 11.95 सर ने भी रट के रखा है, ठीक है। तो 11.95 विल बी योर n नंबर ऑफ पीरियड्स, दैट विल बी योर्स। So you can tell to Mr. Burfi that your 1500 will be converted into 30,000 rupees if the compounding will take place at 9% on a yearly basis in 11.96 years, somewhat near to 12 years. Is it clear? चलो कंफर्मेशन हो जाए बच्चों का। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। कहीं पे भी कोई भी अटक रहा है तो बता दीजिए, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो बता दीजिए। चलो वेरी Can you नाइस। again explain that decimal place 0.0? चलो मेरी वैल्यू कौन सी आई, 0374, ठीक है। ये वैल्यू कहां से आई, लॉग टेबल में से, इधर रही 0374। उसके ऊपर मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। ये पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं, जो मैं लॉग वैल्यू ले रहा हूं ना, ये वाली वैल्यू, उसमें पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं, 1, हाँ तो 1 में से 1 को लेस करोगे तो क्या आता है, 0. तो तुम्हारा आंसर शुरू होना चाहिए 0.0374 से। Okay sir. अच्छा अब बता जितेश, अब बता, चल यहाँ पे 10.90 होते तो क्या होता बता, तो वैल्यू तुम्हारी वैसे की वैसे ही रहती, 0374। अब क्या था, 1.37. अरे वेरी नाइस, चलो आ गया भैया, चलो मौज कर दी, चलो वाह बेटे वाह, मौज कर दी। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। We will go to a very practical concept of deferred annuity, for which you haven't done the calculations in the financial mathematics because people find it very difficult. लेकिन अपने को तो है ना सांप के बिल में जाके घुसने का मजा आता है, फिर वहां से कुछ नई नई कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने का मजा आता है, तो वो करेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपन वो एकदम मस्त आराम से कर पाएंगे। आई हैव फेथ ऑन यू गाइस। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन deferred annuity. Please put your enrollment number as a mark of your attendance. That's it from my side for the session. Take care.